In the previous video, we have discussed about the beverages product and antibiotics. Now there are the other commercial products which are formed by the microbes, also having the industrial role. These include the chemicals, enzymes, bioactive molecules, and chemicals include the organic acids and alcohols. The chemicals include, one is the organic acid, second is the alcohol, and some enzymes are also that we get from the microbes also play very important role. Now the very important question, what is the bioactive molecules and bioactive molecules? This question is very important. NEET as well as CBSE की 3 marks weightage है आपका. First of all, we consider about the organic acid that we get from the microbes. First is the organic acid, that is called the citric acid. Citric acid is the organic acid that we get from the fungus. This is the fungus, it is called Aspergillus niger. ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, साइंटिफिक नेम है, सेपरेट अंडरलाइन करना है, जीनस के नाम को बड़ा करना है और स्पीशीज के नाम को क्या रखना है, स्मॉल रखना है. फर्स्ट द सिट्रिक एसिड, it is got from fungus. The name of the fungus is the Aspergillus niger. It is the first acid. Now what is the use of the citric acid? Citric acid is used in the various purpose like the medicines, in ink making, dyeing purpose, flavoring agent, preservation of food. जितना भी हमारा फूड प्रिजर्व होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड को क्या किया जाता है, यूज. एंड कैंडीज, दिस इज द यूजेज ऑफ द सिट्रिक एसिड. Now the second acid that is called acetic acid. जो एसिटिक एसिड है ये आपको पता ही है एक वीक एसिड है. विनेगर बनाने में सबसे ज़्यादा इसको क्या करते हैं, यूज. इसको बनाने के लिए जो रोल प्ले करता है दैट इज द बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटाई. एसिटोबैक्टर एसिटाई, द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स इज द बैक्टीरिया. इट इज द टू स्टेप रिएक्शन. First of all, fermentation of the sugar is occur. It helps in the formation of the alcohol, and in fermentation, Chinese enzyme play important role, as we have discussed in the formation of the bakery products and alcoholic products. Alcohol then converted into acetic acid, and this bacteria Acetobacter aceti convert alcohol into acetic acid. First step is the anaerobic and second step is the aerobic. It means Acetobacter aceti help in the oxidation of alcohol and result in the formation of the acetic acid. What are the uses of the acetic acid? First, that is the vinegar preparation. जो माइल्ड आपका 6 to 8% आपका एसिटिक एसिड होता है, इसमें कितने परसेंट एसिड होता है, 6 से 8% अल्कोहल होता है, और ये सबसे ज़्यादा इसका यूज विनेगर बनाने में करते हैं. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज है. कलरिंग एजेंट, इसको कलरिंग करने में यूज करते हैं. इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने में, और प्लास्टिक बनाने में इसे क्या करते हैं, यूज. दीज आर द यूजेज ऑफ द एसिटिक एसिड. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सिट्रिक एसिड? फंगस. नेम इज द सिट्रिक एसिड Aspergillus niger. Second, what is the acetic acid? It is the source is bacteria, and bacteria help in the oxidation of alcohol, and the bacteria is called Acetobacter aceti. Now the third is the butyric acid. देखो आप देखते हो कि बटर है आपका, फ्रेश बटर होता है, वो थोड़े टाइम तक तो ठीक रहता है, थोड़े दिनों बाद उस बटर में स्मेल आने लग जाती है. इसके अलावा आप पैक्ड फूड लाते हो जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, थोड़ी देर बाद आप उसमें ये देखते हो कि उसमें कहीं पुरानी पैकिंग है, तो उस केस के अंदर आपका क्या स्मेल आनी शुरू हो जाती है. जो स्मेल आती है वो आपकी क्या है, स्मेल आना वो रेंसिडिटी है. रेंसिडिटी एक प्रोसेस है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रेजेंट इन द फूड. यानी कि जो ब्यूटाइरिक एसिड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका रेंसिडिटी. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेंसिडिटी ऑफ बटर, और ये किसकी वजह से होती है, ब्यूटाइरिक एसिड. अब ब्यूटाइरिक एसिड को बनाने के लिए जो सोर्स काम करता है वो भी एक क्या है, बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम. क्लोस्ट्रीडियम
butylicum. It helping the formation of the butyric acid. Fourth acid which is widely used, the lactic acid. We have discussed the role of the lactobacillus bacteria in detail. It means lab bacteria helping the formation of the lactic acid. These are the 4 points according to Rodley NCERT. Lactic acid helping the formation of the lactic acid formed from bacteria, that is the lab bacteria. It is called lactobacillus. In addition to this, lactic acid is also formed from fungus. That fungus is called the rhizopus. Other bacteria which are responsible for the formation of the lactic acid, it is the Streptococcus lactis. The role of the lactic acid: first, it is also used as in making the fruit juices, curing of meat, that is the lemons. जितने भी हमारे ये लेमन ड्रिंक्स आते हैं ये सारे किससे बनते हैं, that is the lactic acid. Canned vegetables, जो canned food है जिसमें हम वेजिटेबल को प्रिजर्व करते हैं, it is also act as a preservative. Fish food and many other confectionery products. In this we discussed about the 4 types of the acid and the sources of the acids. Or all the sources mostly belong to the category of bacteria. But the citric acid that we get from the fungus, it is called Aspergillus niger. Now the second topic, that is the enzymes. Now the role of the microbes in enzyme production. देखो enzymes आपको पता है क्या होते हैं, these are the biocatalysts which increase the rate of reaction. जैसे आपको पता है कि प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करते हैं वो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करते हैं लाइपेज एंजाइम होते हैं। आजकल देखो आप ऐड वो देखते हो, जैसे कि आपके आते हैं डिटर्जेंट्स की बहुत सारी ऐड आती हैं, तो कहते हैं कि ये जितनी से जितनी दाग हटाए, स्टेन को रिमूव करता है ऑफ एवरी टाइम। तो ये ऑयल स्टेन को भी क्या करता है, रिमूव करता है। तो क्या है इन डिटर्जेंट्स के अंदर, आज के जो डिटर्जेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एंजाइम्स ऐड है। लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाना है यानी ऑयल की स्टेन को रिमूव करना है तो उसमें हम लाइपेज एंजाइम डाल देते हैं। यदि क्या है ब्लड वगैरह इसके अंदर आपके प्रोटीन की स्टेन का कलर है तो उसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं। इसी तरह क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर फॉर्म फ्रॉम माइक्रोब्स। इसके अलावा देखो क्या है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होना क्या हो जाता है, शुरू, और उस पेशेंट को भी क्या है आर्टिफिशियली एंजाइम्स दिए जाते हैं ओरली माउथ के थ्रू, और वो लिक्विड सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में आते हैं, वो भी एंजाइम्स ही हैं। यानी कि रोल ऑफ द एंजाइम्स इज द इन वेरियस सेक्टर। जैसे देखो किसी पेशेंट को क्या है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट के अंदर किसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आता है, यानी कि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा। जब उसके अंदर आपको पता है ब्लड फ्लो नहीं कर रहा तो ये क्या है, हार्ट मसल के पास ब्लड नहीं जा रहा और हार्ट आपका काम नहीं कर रहा, वर्किंग उसकी क्या हो जाती है, स्लो, और हार्ट अटैक आ जाता है। यदि मान लो यदि उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बना हुआ है उसको ही हम डिजोल्व कर दें एंजाइम की हेल्प से, तो आपको पता है उस पर्सन को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मीन्स देयर आर द वेरियस एंजाइम व्हिच आर द स्पेसिफिक रोल्स। फर्स्ट इज द एंजाइम दैट इज कॉल्ड द लाइपेज। Lipase enzyme, as the name indicates, it digests the lipids, यानी कि oils. It is formed from the fungus that is called Candida lipolytica. Candida lipolytica helping the formation of the enzyme lipase. And what is the use of this lipase? जैसे अभी बताया डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, जिसका काम होता है क्या करना, ऑयल स्टेन को रिमूव करना, कहाँ से, लॉन्ड्री से, और इस पर्पज के लिए हम क्या है यूज करते हैं किसको, लाइपेज को। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। सेकंड एंजाइम इज द पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, यानी कि P2, दोनों ही पीते हैं कि पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम ये भी आपको किससे मिलते हैं, फंगस से ही मिलते हैं, और इनका काम क्या होता है, जूसेस की टर्बिडिटी को क्लियर करना। कैसे, जितने भी हमारे फ्रूट जूस हैं, जैसे रियल फ्रूट जूस आ रहे हैं, इसके अलावा आपके क्या और भी बहुत सारे ब्रांड्स के क्या होते हैं, जूसेस होते हैं। जब हम जूसेस को फ्रूट से निकालते हैं तो उनमें टर्बिडिटी होती है, यानी कि वो क्या है, क्लियर नहीं होते। उनकी टर्बिडिटी को हमें क्लीनिंग करने के लिए हम एंजाइम्स को यूज करते हैं, किसको, पैक्टिनेज और प्रोटीएज को, और इनका काम होता है फ्रूट जूसेस को क्या करना, क्लियर करना, ताकि इसे प्रिजर्वेटिव फॉर्म में यूज कर ले ड्यूरिंग बॉटलिंग, यानी बोतल में फिल करें, उसकी टर्बिडिटी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू
देखो नाम है स्ट्रिप्टोकाइनेज, सोर्स को याद करना बहुत इजी है इससे, स्ट्रिप्टोकोकस, इट मींस दिस इज द एंजाइम दैट वी गॉट फ्रॉम द स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया, बट दिस इज द नॉट ए नॉर्मली बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडिफाई करते हैं इस बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को मॉडिफाई कैसे करते हो? बैक्टीरिया में किसी का जीन डाल दो तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है, बैक्टीरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? चेंज, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म आपको शो होता है वो डीएनए की वजह से होता है। मान लो हमें क्या स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करना है, हमने जीन डाल दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मॉडिफाइड द बैक्टीरिया जेनेटिकली, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ये बैक्टीरिया आपका क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द बायोटेक यूनिट, फोर्थ यूनिट, कि इसके अंदर हमें क्या है, कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, यानी कि किसी और का डीएनए इसमें डाल देते हैं, इसमें बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया एक्सप्रेशन क्या करता है? शो। और इसका काम क्या होता है? क्लॉट बस्टर। अभी आपको बताया, जैसे आपको पता है कि ये हमारे हार्ट की वेसल्स है, ये वेसल आपको कैसी नजर आ रही है? इसका ल्यूमन क्लियर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर ये क्या होता है? फ्लो होता रहता है क्या? ब्लड। इसमें नॉर्मल क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो इसके अंदर क्या है, अब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो वो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा? क्लॉट की वजह से, यानी कि इसके अंदर ये क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से पर्सन को क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। मायोकार्डियल, मायो मीन मसल, यानी कि द मसल विच फॉर्म द हार्ट, यानी हार्ट मसल्स को क्या है? ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। मान लो इस पेशेंट को हम क्या करें कि स्ट्रिप्टोकाइनेज दे दें, तो ये वाला क्लॉट है, ये इसका डिजोल्व होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जब ये क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मींस इट हेल्प इन रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट पेशेंट which has undergone the myocardial infarction which leads to the heart attack. These are the very important two questions. One is the pectinase and proteases which help in the clearing of the juices. Second is the streptokinase which act as a clot buster. It is also known by other name that is called TPA. क्या है ये? TPA, इसे बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? टिश्यू प्लाज्मोजन activator. It is also the name of the streptokinase which help in removing the clots in the blood vessels. In the last we consider about the bioactive molecules. What are the bioactive molecules? As the name indicates, bio plus active. Bio means living, active means functional. It means those molecules which are functional in the living system is called the bioactive molecules. या they can interact with their components. या उन molecule से जो components मिल रहे हैं वो living system में क्या कर रहे हैं? interact कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? bioactive molecules. Two bioactive molecules are there. One is the cyclosporine, second is the statin. What is the cyclosporine A? The source of the cyclosporine A is the fungus. It is get from Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum, याद रखना CT, यानी कि क्या है? ट्राइकोडर्मा से आपको साइक्लोस्पोरिन मिलता है। अब देखो इस साइक्लोस्पोरिन का क्या बेनिफिट है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव काम करता है। कैसे इम्यूनोसप्रेसिव? इम्यून सिस्टम को क्या कर देना? स्लो कर देना। कैसे? देखो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के जितने भी अब क्या है ऑर्गन्स, वो हमारी बॉडी कहती है ये खुद के सेल्फ है। हमारे इम्यून सिस्टम में एबिलिटी होती है, यदि हम क्या है बाहर से कोई चीज़ भी देते हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कौन सा? इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो किसी की किडनी ली, तो वो किडनी जब हमने ले ली किसी और पर्सन की, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। और इम्यून सिस्टम किसकी वजह से रिजेक्ट करता है? सेल्स की वजह से। हमारी बॉडी में ना 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। वन टाइप सेल इज द बी सेल, सेकंड इज द टी सेल। बी सेल इज द बी लिम्फोसाइट, टी इज द टी। बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी बनाने में रोल प्ले करता है, बट
टी वाली सेल्स क्या करती है, हेल्प करती है किसको बनाने में, एंटीबॉडी को बनाने में। ये टी सेल हमारी क्या करती है, रिजेक्शन में भी रोल प्ले करती है। यदि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चीज आए, इसको ये कहती है फॉरेन। यदि इसको ये दिख जाए कि बॉडी में बाहर से कुछ आ गया तो टी सेल एक्टिव हो जाएगी। ये बी सेल को कहेगी कि क्या बनाओ, एंटीबॉडी, और हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देगी उस ऑर्गन को जो ऑर्गन हमने किसी से क्या किया है, ट्रांसफर किया है। तो यानी कि इसका मेन काम क्या है, साइक्लोस्पोरिन का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कैसे है, ये उन पेशेंट को दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन जब उसको क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो ताकि उसके इम्यून सेल में जो टी सेल है वो इनएक्टिव हो जाए। वो इनएक्टिव हो जाएगी तो आपको पता है वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेगा। सेकंड, इसका प्रॉपर्टी क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल। एंटी विनोपोजिन यानी कि ये फंगल जैसे हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन, तो उसके अगेंस्ट भी ये क्या करता है, काम। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट आपको पता है क्या है, जो हमारी बॉडी में किसी चीज को ऑक्सीडाइज ना होने दे। और एंटी इंफ्लेमेटरी जब ये काम करेगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, तो ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने नहीं देता। यानी कि क्या है, साइक्लोस्पोरिन, द सोर्स ऑफ द साइक्लोस्पोरिन इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, CT, इट एक्ट एज ए इम्यूनोसप्रेसिव और हेल्प इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और ये क्या है, किसकी वजह से ये और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, टी सेल को इनएक्टिव कर रही है। फिर इसके बाद आता है सेकंड, स्टैटिन। स्टैटिन आपका क्या है, SM, यानी कि इसका सोर्स क्या, वो भी एक फंगस है जिसे बोलते हैं मोनोस्कस परप्यूरियस। मोनोस्कस परप्यूरियस का काम क्या है, जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल बनता है तो ज्यादा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल को सिंथेसिस को कम करना है तो उस पेशेंट को क्या कर दो, स्टैटिन की ये टैबलेट्स दे देंगे, और स्टैटिन क्या करेगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर देगा। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कैसे कम करता है, ये खुद इसका एक मॉलिक्यूल काम करता है इनहिबिटर का, और ये इनहिबिटर किसके लिए काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन द 11th क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द एंजाइम इनएक्टिवेशन। एंजाइम इनएक्टिवेशन के लिए जो इनहिबिशन है 2 टाइप की होती है, कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है उसमें एंजाइम क्या करता है, एक्टिव साइट के लिए फाइट करता है, कि जिसमें इनहिबिटर होगा वो एक्टिव साइट पे आ जाता है। इसी तरह ये स्टैटिन मॉलिक्यूल है, जो एंजाइम है कौन सा, HMG-CoA, ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने में रोल प्ले करता है, और इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइल CoA रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने में रोल प्ले करता है। जब जिस पर्सन को हम स्टैटिन दे दें, ये इसके लिए कंपटीशन का काम करेगा। एक्टिव साइट पे अब क्या है, ये एंजाइम नहीं जाएगा, कौन चला जाएगा, स्टैटिन चला जाएगा, जिसकी वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज नहीं करेगा और प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इट मींस स्टैटिन हेल्प इन lowering the cholesterol level. This is regarding about the bioactive molecules. In this video we have discussed about the various types of the commercial product industrial, that is the first is the alcohol, second is the antibiotic, third one is the chemicals like the acid, citric acid, acetic acid, lactic acid, butyric acid, and the enzymes like the lipase, pectinase and proteases, and then the cyclokinase. Every enzyme has specific role. Now the क्या है, bioactive molecules, that is the cyclosporin, which act as immunosuppressive agent. Second is the